کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ یہاں پہ جو ابھی ینگ جنریشن ہے نا وہ زیادہ ہے ماشاءاللہ, کہ جن کو سمجھ ہے اس چیز کی, جو واقعی جو حقیقت پسند ہے. علماء کرائم کرتے ہیں, وہ شارٹ کلپس وغیرہ اس کے جو ہیں وہ کراپ کر کے اور وہ شیئر کیے ہوئے تھے. وہ سن کے ایک دفعہ تو بندہ سوچتا ہے کہ یار ایسے کیا آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھی مطلب ادھر گیا تھا ان پہ, بٹ جب میں ان کا ایٹیٹیوڈ روڈ بیہیو دیکھا نا, جو کویشچنر تھے, تو ادھر سے میرا دل تھوڑا ہٹ گیا, میں پیچھے ہٹ گیا, میں نے ان سے سوال نہیں کیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اہل بیت کا تعارف ہوا, جو سب سے بڑی میری زندگی کی اچیومنٹ ہے. نہیں, اس سے پہلے نہیں تھی. تو اپنے فیملی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی, الحمدللہ کافی حد تک جو ہے بہتر ہے. آج میں اپنی امی کی اجازت سے انشاءاللہ زیارت کرنے آیا ہوں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یعنی ساتھ امامت کرا رہا نا, تو امامت کرا رہے ہو؟ ہاں جی. کون سی مسجد میں؟ اہل حدیثوں کی مسجد ہے گجرانوالا. اہل حدیثوں کی مسجد میں, تو وہ دیکھ لیں گے. تو ان کو بتایا یار یہ آپ کے اندر کمی ہے؟ جی بتایا. تو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے مانا کہ ہاں یار بس ٹھیک ہے یار, اگر ہم اہل بیت کی بات کریں گے نا تو یہ شیعوں کو پروموٹ ہوں گے. شیعہ اللہ اکبر. بس اسی طرح استاد محترم کو میں 2021 سے سنتا آ رہا ہوں, جب یہ مفتی طارق مسعود والا جو ایپیسوڈ ہوا تھا نا, مفتی صاحب والا, ہاں, تو تب میں نے تو دفاع مفتی صاحب کا کیا, لیکن 1-2-3 ماہ بعد جو ہے نا پہ امپیکٹ پڑنا شروع ہو گیا انجینئر صاحب کا. ہر جمعے نا کوئی علی بھائی کی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ویورشپ بھی آ جاتی ہے, تو لوگ ان کو تھوڑا سپورٹ بھی کرتے ہیں جو قبر چٹو ہیں. اچھا, ایک سیکنڈ چیز میں علی بھائی کے لیے ایک پیغام دوں گا, جو اصل میں شاید وہ کوئی مسنگ نہ ہو جائے. ابھی ان کو پکچر میں بھی میں نے ان سے ایک بات کی تھی کہ علی بھائی یہ سلطان راہی والا اسٹائل چھوڑ جی وہ سن لیا, آپ کا میسج میں آ جائیں. پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نا لوگوں کو تحقیق, تفتیش, توثیق, تصدیق, جانچ پڑتال, جائزہ, اختلاف رائے و کریٹیسزم کا ہنر سکھا رہے ہیں. یہ ان کا پازیٹیو پوائنٹ ہے. نہیں تو علماء تو کہتے ہیں اس کو سننا ہی نہیں ہے. خواہش کی کہ انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ ایک دفعہ نا الحمدللہ وہاں پر, تو اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کر دیا الحمدللہ. گمراہ ہو گئے ہو, وہ صحیح کہہ رہے تھے, آپ گمراہ ہو چکے ہو. اگر آپ کو ریفرنسز مل رہے ہیں نا اور ان کو نہیں مل رہے ہیں تو آپ گمراہ ہو گئے ہو. یہ اچھی بات ہے, جو مطلب کہ لینا دینا یا کچھ نہیں ہے, یہاں بس سیکھنا دین ملے گا آپ کو, خالص ملے گا. یہاں تو میں صاحب آپ چینل کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ آئیں, آپ کو جو ہے نا وہ کچھ سیکھنے کو ملے گا, اچھی چیزیں ملے گی. تو جب میں نے ان کو یہ ریفرنس سینڈ کیے نا, تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ نے مانا. میں تو مان رہا ہوں, لیکن آپ نہیں مان رہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. توحید, پھر ایسی توحید بیان کی ہے جیسے صورت پورے قرآن کا خلاصہ ہی بیان کر رہے ہیں. یہ قرآن بیان کر رہے ہیں. مولوی کہتے ہیں جی خود سے نہیں پڑھنا, کسی کے تھرو پڑھنا ہے. کسی کے تھرو کیوں پڑھنا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شہرک سے بھی قریب ہوں, تو اس کے بعد تو کچھ نہیں رہ جاتا نا پھر. یہ بیہیویئر ہے نا, مطلب وے آف ٹاکنگ ہے, اور جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ برقرار ہے تو ہمارے دماغ میں کچھ گھس رہا ہے. اچھا, یہ سیدھی وہ, میں پچھلے بندے سے ابھی میں مطمئن نہیں ہوں. یہ بیہیویئر ہوگا تو دماغ میں, وہ بولتے نا ڈرل اگر ہوگا نا دماغ میں تو ظاہر ہے درد تو ہوگا. تو یہ تو بالکل قرآن کی طرح بیان کر رہے ہیں. یہ تو سننے والی بات ہے, اس میں نہ کوئی بابوں کی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی بابے شابے, مولوی شولوی, ڈبل شاہ, ٹریپل شاہ. اتنے بڑے بٹے آگے کر دیتے ہیں جی اس میں جی چندہ پھینک کے جائیں, اور جو کچھ انہوں کو کہنا ہوتا ہے جی قرضہ وغیرہ پاکستان نے لینا, وہ جا کے داتا صاحب سے مانگ لیں. تو آپ داتا صاحب سے چندہ کیوں نہیں مانگتے؟ داتا صاحب سے چندہ کیوں نہیں مانگتے؟ پتہ ہے ادھر سے نہیں ملنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حال میں ہو چکی ہے ریکارڈنگ ختم. حال میں جو آئے ہوئے لوگ ہیں آپ ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں, تو آئیے جی. کون؟ وعلیکم السلام, کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام راشد جاوید ہے. راشد بھائی کدھر سے؟ میں فیصل آباد سے تعلق ہے میرا. فیصل آباد سے؟ جی. اکیلے آئے ہو؟ جی اکیلا ہوں. خیریت تھی؟ کیا ضروری کام بتانے گیا تھا جیل؟ نہیں, بہت عرصے سے ہی سر سے اٹریکشن تھا سوشل میڈیا کے تھرو,
स्पेशली यूट्यूब पे, तो माशाल्लाह उनकी बातें, उनका पैगाम बड़ा अच्छा लगा। तो दिल में एक हसरत थी, तो इस्लामाबाद आया था काम से किसी, तो मैंने कहा सर से मिलते हुए चलते हैं, तो बस इसलिए आया था ताकि खुद भी देख सकूं, माहौल भी देख सकूं और दुआ भी करवा सकूं कि अल्लाह पाक हमें भी हिदायत नसीब फरमाए। सर का जब तारुफ आपको पहली दफ़ा हुआ, नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? नहीं, पहली दफ़ा मुझे पॉजिटिव था, क्योंकि बातें वो रेफरेंस से और यानी कि अथेंटिक करते थे। कुरान और हदीस में कोई अपनी बातें नहीं हैं, तो ज़ाहिर बात है वो डायरेक्ट दिल को लगती हैं। तो बस उसी से मैं थोड़ा सा हुआ, तो फिर शौक़ हुआ, फिर उनकी वीडियोस देखी और देखी, फिर जो भी चीज़ समझ आती थी। लेकिन ये है कि सिर्फ उन पे ही नहीं किया, फिर मैं खुद भी तहकीक करता था कि थोड़ी बहुत, जिस तरह अभी ऐप है 360, उस पर देख लिया कि वाकई ये बात ठीक है या नहीं सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा हुआ है, कम से कम मेरी ज़ात के लिए है कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, बस ये मेरा है। आज अकेडमी आए हैं जी, आज आपने लाइव देख लिया, सुन लिया, वीडियोस में तो देखा होगा, जी, क्या फ़र्क पाया? फ़र्क इतना को ख़ास नहीं था, सिवाय इनके कि वे फिज़िकली हैं, बाकी उनका पैगाम, उनका लहजा, उनकी चीज़ें वो वैसे ही नेचुरल हैं जिस तरह वो वीडियोस में करते हैं। अच्छा, हमारे जो मुखालफीन है ना, वो इल्ज़ाम लगाते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कमरे में बैठा रहता है, बंदे भी अपने भाई होंगे ने। प्लांटेड चीज़ देखी है आपने यहाँ पर? नहीं, ऐसी प्लांटेड तो कोई नहीं है, ज़ाहिर बात है, नेचुरल है, सारे लोग हैं। मैंने एक दो से मेरे जो पास बैठे थे, मैंने पूछा है कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की है कि यहाँ पे जो अभी यंग जनरेशन है ना, वो ज़्यादा है माशाल्लाह, कि जिनको समझ है इस चीज़ की, जो वाकई जो हकीकत पसंद है, जो कहते हैं कि यार कोई चीज़ हो, मजबूत एविडेंस हो। आपको पता आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया सारा, तो इंसान उससे मुतासर होता है कि मैं कुछ चीज़ मुझे अथेंटिक हो। ऐसे नहीं कहानियाँ जिस तरह हमें लगाया हुआ है, कोई यानी कि कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ वो अथेंटिक बात करते हैं, रेफरेंस के साथ बात करते हैं, कि जो डायरेक्ट अहकामात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिले हैं वो करते हैं। आप गए थे अंदर मुलाकात करने? हाँ जी, मुलाकात फर्स्ट में ही था, मेरी मुलाकात हुई है सर से। हाँ जी, मिले हैं, तो दुआ की दरख्वास्त की है, मुझे खुशी हुई है उनसे मिल के कि एक होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज और कौन है? अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या नाम है भैया? मेरा नाम राउज़ शान एडवोकेट है। ठीक है। बेसिकली मैं आरिफल्ला से हूँ, लेकिन मैं लाहौर प्रैक्टिस करता हूँ, लाहौर से ही आ रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, कैसे आना हुआ पहले तो ये बताएं। इंजीनियर साहब को मैं सुन रहा हूँ तकरीबन 2017-18 से, तो उस वक्त जो इनका तारुफ हुआ था मुझे, वो एक नेगेटिव तारुफ था। वो जिस तरीके से उलमा क्राइम करते हैं, वो शॉर्ट क्लिप्स वगैरह इसके जो हैं वो क्रॉप करके और वो शेयर किए हुए थे, वो सुन के एक दफ़ा तो बंदा सोचता है कि यार ये ऐसे क्या, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसा ही है। तो वो फिर क्योंकि मेरा शोबा ही वकालत है, हम तहकीक करके और दलाइल पे चीज़ें देखते हैं, तो मैंने इस वक्त सर्च आउट किया इसके बारे में, तो अल्लाह ताला ने जो है वो हिदायत का रास्ता ही बना दिया, समझ लें। तो फिर दिमाग और इस तरफ खुला। हालांकि मैं डॉक्टर सर को पहले भी सुनता था, उनकी वजह से फिर क्रिटिकल थिंकिंग बंदे के अंदर आ जाती है कि नहीं, एक लकीर का फ़कीर नहीं बनना, हमने सोच समझ के दलाल के साथ चीज़ों के साथ चलना है। फिर इंजीनियर साहब का तारुफ हुआ जिस वक्त मुझे असल, तो उसके बाद से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वीडियो सुन रहा हूँ। आपकी कम्युनिटी में भी लोग ऐसे होंगे मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से, तो उनको कैसे टैकल करते थे? वो तो लोग कहते होंगे भी तू केड़े पास लग गया, ये वो होता है ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है, जिस वक्त आप दलील लेते हैं ना कुरान और हदीस से, तो फिर अगला बंदा या तो आपके जवाब में आपको कुरान या हदीस पेश करे, नहीं तो फिर वो चुप हो जाता है, उसके पास फिर जवाब नहीं होता कोई। वो अगर आप थर्ड या फोर्थ सोर्स के जो रेफरेंसेस हैं वो देता है, तो फिर वो नहीं ना सस्टेन करते इन चीज़ों के आगे कि कुरान और हदीस है एक तरफ और एक तरफ आप कहानियाँ सुना रहे हैं, तो वो फिर नहीं रुकती उनके आगे, उनको फिर खामोश होना पड़ता है इस चीज़ से। ऐसे ही है। कई लोग तो मान लेते हैं बात को, कई जो फिर बज़िद होते हैं वो फिर नहीं मानते, उनको फिर हम छोड़ देते हैं कि नहीं बस ठीक है। फर्स्ट टाइम आया? मैं फर्स्ट टाइम आया। आगे वीडियोस में देखा जी, आज लाइव देखा जी जी, कैसा फील किया? अच्छा, इस तरीके से है कि मैंने जैसे आपको बताया तकरीबन 8 साल के करीब हो गए, 7-8 साल हो गए मुझे सुनते हुए, तो एक डिटो कॉपी तो दिमाग के अंदर बनी हुई है कि इंजीनियर साहब का ये लहजा, ये अंदाज़, ये सवाल आया तो वो इस तरीके से इसका जवाब देंगे, इस तरीके से करेंगे। लेफ़्ट ओवर तो ये करते नहीं चीज़ों को, ये मतलब उसको वेल टैकल करते हैं चीज़ों को। तो एक बस ये एक्सपीरियंस था, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लाइव देखने का। ऐसी बात है जिस शख्स से इंसान मोहब्बत करता है और ख़ासकर अल्लाह और रसूल के लिए मोहब्बत करे, उससे मिलने की आपको ख्वाहिश तो होती है, तो वो ख्वाहिश अल्लाह ताला ने आज पूरी कर दी। बाकी लेक्चर्स उनके सुन रहे थे, अंदाज़ और चीज़ें वगैरह तो उनसे तो आशना थे हम पहले ही सारे। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज और गौर। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम। क्या नाम है भैया? शकील अहमद। शकील भाई किधर से है? मैं बेसिकली तो मैं पाकिस्तान से ही हूँ, बट मैं दुबई से आया हूँ। नहीं, पाकिस्तान किधर से? मंडी बहाउद्दीन से। मंडी वाले तो माशाल्लाह नंबर ले गए हैं। ऐसे ही है, मंडी वाले इतनी तादाद में आ रहे हैं ना, जी जी, रौनकें लगी हुई हैं उधर। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब ये बताएं आपको तारुफ कैसे हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव?
लेट बी ऑनेस्ट, फर्स्ट फॉर ऑल मैं तो दुबई से इसीलिए आया, ना तो मैं इधर पिक्चर खिंचवाने आया हूँ, ना मैं लंगर खाने आया हूँ। मुझे क्वेश्चन करने हैं, मैं 2000 माइल का सफ़र ट्रैवल करके आया हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर, एथिज्म वर्सेस रिलीजन पर। एक तो क्वेश्चन है जो कि सिर्फ मेरे नहीं है, हम लोग जो दुबई में एक कह लेंगे हल्का हिबाब है, जो कि मुझे लगा। पहले मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी मतलब उधर गया था उन पर, बट जब मैंने उनका एटीट्यूड रूड बिहेव देखा ना, जो क्वेश्चनर थे, तो उधर से मेरा दिल थोड़ा हट गया, मैं पीछे हट गया, मैंने उनसे सवाल नहीं किया। फिर इनको सुन तो रहा था मैं यूट्यूब पर, बट मेरे क्वेश्चन वो नहीं है जो एक विद इन द रिलीजन होता है ना, एक यू नो फ़िरका वारियत वाले, ये वो मेरे क्वेश्चन इससे हटकर है, मेरा क्वेश्चन ही रिलीजन पर है, यू नो। तो अभी उनसे डिस्कशन होगी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस तो किया है 2 मिनट, यानी कि आप जब ये सारे चले जाते हैं फिर आपको टाइम देते हैं, उसके बाद ही मैं अपना रिव्यू दे सकूँगा जो भी फेयर होगा। कि मुझे उनसे आपने क्वेश्चन किया था? अभी अंदर गया नहीं लिख के किया था सुबह? नहीं, जब तक मैं आया था वो खत्म हो चुका था। फिर इन्होंने कहा था कि आप शायद वो बिलाल वाले लाइव चैनल है हमारा, उसका मुझे इंट्रोडक्शन नहीं है, तो मैं अभी दुबई से आई स्पेशली। वैसे आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप ये 100% लिखेंगे ना, क्योंकि आपसे इतने बड़े एथियस्ट हैं, ठीक है, इधर आए भी हैं। मैं एथियस्ट नहीं हूँ। नहीं, मैं मुझे पता है आप नहीं है, मैं बता रहा हूँ हैं जो इधर आए भी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, वो जो कर सकते हैं आप नहीं कर सकते, जो है ही एथियस्ट वो क्या करेगा, ठीक है। तो उनके जवाब भी रिकॉर्डेड है, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मैं आया हूँ 2000 माइल का ट्रैवल करके, ठीक है, ऐसी बात है। मैं भी क्रिएटर को जानने के लिए आया हूँ और वो भी क्रिएटर की ही तबलीग कर रहा है, राइट। अगर मैं 2000 माइल का सफ़र करके आया हूँ, वो भी अगर 2 मिनट पे उस पर बात करें, हर किसी के डिफरेंट होते हैं, वो अलग बात है। मैंने उनको सुने हैं, मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक के भी बहुत सारे यू नो उनके लेक्चर सुने हैं। चले, मैं आपके तवज्जुह से लोगों को भी बता रहा हूँ ना कि 2000 माइल या 100 माइल सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइव भी आ सकते हो, कौन सी ज़रूरत थी इतनी, आप उधर से वीडियो कॉल पे आ जाते, ठीक है, वहाँ पे बात हो सकती थी। चले, और कोई ना करे। ज़रूरत यही है, वो देखिए वो अपनी जान का रिस्क लगा के बैठे, मैंने इधर 5 दफ़ा उन पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ, फिर भी वो अपने पैशन से पीछे नहीं हटे। इसी तरह मेरा भी पैशन था कि मैं यूट्यूब पर नहीं आऊँगा, मैं ट्रैवल करके अगर यहाँ पे आपको टाइम ना मिले तो फिर कैसा लगेगा? तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यही कहा कि मैंने अपना जो फेयर पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके बाद ही मैं दे सकूँगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपको अगर टाइम ना मिले तो फिर वो आपका सफ़र सारा बेकार गया। इसलिए कह रहा हूँ कि जो सुन रहे हैं कम से कम उनको पता चल जाएगा। होना ये चाहिए कि आप लाइव सवाल कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया, चलें, वो तो अलग बात है ना, अदरवाइज मुश्किल ये टाइम मिलता है। सारी बात आपको पता है, यहाँ पे एक डेकोरम से चीज़ें चल रही होती है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आएँ जी, और अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम जी, सरगोदा से आया हूँ सर। सरगोदा शाहीनों का शहर, माशाल्लाह जी सर। कैसे आना हुआ? सर इंजीनियर साहब को मिलने की ख्वाहिश थी, 2019 से ना उनको सुन रहा था, ख्वाहिश प्रोग्राम बनाते थे, रह जाता था, तो आज अल्लाह ने ये ना हमारी ख्वाहिश पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह। जब इनका तारुफ हुआ, नेगेटिव था पॉजिटिव था? ना नेगेटिव था ना पॉजिटिव, एक्सीडेंटली हुआ सर। कैसे? हम ना वैसे ये फेसबुक यूज़ करना शुरू की तो इनको मैं स्किप कर देता था, तो एक दिन बस प्रेस हो गया सर, फिर उसके बाद इनकी मैंने जानना तब तक आप नहीं जानते थे? नहीं जानते, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं पता भी नहीं था सर। सही, एक्सीडेंटली वो तारफ़ हुआ सर। तारफ़ होने के बाद सर अल्लाह के फजल करम से हमें अहले बैत का तारफ़ हुआ, जो सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट है। नहीं, इससे पहले नहीं थी। पहले कौन सा मकतब फ़िक्र था? अहले हदीस थे। अहले हदीस, अब भी अहले हदीसों से प्यार मोहब्बत है, लेकिन वो उनके अंदर एक पोर्शन नहीं था अहले बैत वाला, यानी उनका अच्छे तरीके से उन्होंने इसका दफा नहीं किया। फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि फ़िरका फ्री इस्लाम मिला मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बिल्कुल मुसलमान हैं। तो अहले हदीसों की इस्लाह करने की कोशिश की आपने? की है उनसे सारी बात। आप काफ़ी अरसे से उनके साथ अटैच होंगे, दोस्त भी होंगे, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो उनको बताया यार ये आपके अंदर कमी है? जी जी बताया। तो क्या कहते हैं? उन्होंने माना कि हाँ यार बस ठीक है यार, अगर हम अहले बैत की बात करेंगे ना तो ये शियों को प्रमोट होंगे, शिये। अल्लाह अकबर, देखा ना वो बता रहे हैं ना, वो भी हम भी एक फ़िरका है। बाकी ये कि बस फिर हमने छोड़ दिया कि ठीक है यार। आज फर्स्ट टाइम आए? जी फर्स्ट टाइम। लाइव देख लिया? जी लाइव। अकेडमी का माहौल भी देख लिया? कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उलमा तो कहते हैं इसके बंदे अपने होते हैं, सवाल अपने बंदों से लेता है। नहीं, ये तो हमने देख लिया। उनके मुखालफिन कहते हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये अपने बड़े बंदे का सवाल लाता है, पर्ची अपने बंदे की लाता है ऐसा कुछ देखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर गए मिल के आए हैं? जी मिल के हैं। तस्वीर और पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं, क्या आपको लगता है वो भी दीन की खिदमत इसी तरह बैठ के कर रहे हैं? आम वाम आ रही है, जो चाहे आप उनसे क्वेश्चन पूछे मिल भी ले, सबसे बड़ी बात। यानी कि ये जो बात है इनकी, ये तो अलग है सबसे, अल्हम्दुलिल्लाह।
चलिए बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हाँ जी और कौन? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? इमरान उल्लाह। मलक वाल से आया हूँ मैं। हाँ जी। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी पहले। क्या? ये थी कि हमारे जो फैमिली है ना, बेसिकली पूरा गांव यहाँ से, उनका बिलीव ज़्यादा ये दरबारों पे, और मतलब गुस्ताखी हो जाती थी दरबार के बारे में, कोई गलत बात हो जाए, कोई देख वगैरह भी बांट रही हो तो दरबार पे जाकर बांटनी है, चाहे पड़ोस में कोई गरीब है नहीं। रैंडम मैं वीडियो देख रहा था, मैं बेसिकली मैं जॉब करता हूँ बहरीन में, तो मैं वीडियो देख रहा था, मेरे इंजीनियर साहब की वीडियो आई है सामने, बाबे थे शायद कोई नहीं। तो उसके बाद मैंने आईडी ओपन करके प्रॉपर सारी वीडियो देखना शुरू किया, तो मुझे समझ आया। उसके बाद मैं जब वापस पाकिस्तान आया हूँ तो अपने फैमिली को भी समझाने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है बेहतरी है। आज मैं अपनी अम्मी की इजाज़त से इंशाल्लाह ज़ियारत करने आया हूँ माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा ये तो होगी मीठी मीठी बात है, मुखालिफिन किधर हैं, उनकी भी तो कोई बात बताएं। मुखालिफिन बहुत हैं, जहाँ पे नमाज़ पढ़ता हूँ मैं अभी भी हमारे गाँव में, मेरा फैयादान करता हूँ, बाकी मस्जिद कोई भी नहीं करता। वो मुझे मतलब इस बात से मना करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझे नहीं है। इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अच्छा आज पहली दफ़ा आए? जी फर्स्ट टाइम। देख लिया उस्ताद मोहतरम, कैसे रहे उस्ताद मोहतरम का लेक्चर, कैसा रहा? आज एकेडमी का माहौल कैसा देखा? एकेडमी का माहौल सोच से ज़्यादा अच्छा था, इतना बिलीव नहीं किया था। मिलके भी आए हैं? मिलके भी आए हैं, बहुत अच्छा। बहरीन से आए हैं? जी बहरीन से। मुट्ठी छुट्टी भी गर्म की है कोई नहीं? जी इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं, और भी दोस्त आएंगे। नहीं मुट्ठी मेरे को चंदा चंदा वो तो नहीं लेते ना। अच्छा, नहीं ये तो उनकी खसीयत है। अच्छा, ये अच्छी बात है, जो मतलब कि लेना देना या कुछ नहीं है, यहाँ बस सीखना दीन मिलेगा आपको, खालिस मिलेगा यहाँ। तो मैं साहब आप चैनल की तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे आएँ, आपको जो है ना वो कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी चीज़ मिलेगी। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आए जी और कौन? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बच्चा? अबू तलहा नाम है। अबू तलहा। किधर से भैया? गुजरावाला से आया। गुजरावाला में बहारें आ गई है, कैसे आना हुआ? ऐसे कुछ जिले में भिनोई रहते हैं ना, तो कोशिश ये थी चलो इंजीनियर साहब की अकेडमी में जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर और फ़ायदा हो इंशाल्लाह। और इसके अलावा यदि साथ ही इमामत करा लो ना, तो इमामत करा रहे हो? हाँ जी। कौन सी मस्जिद में? अहले हदीसों की मस्जिद है गुजरावाला। अहले हदीसों की मस्जिद में, तो वो देख लेंगे। तो कोई बात नहीं, जो हक की बात वो करनी चाहिए हमें, क्या माशाल्लाह। तो ये बात है कि जो मैंने इंतजामिया के साथ बात भी की थी, जो एक भाई जानते हैं, उन्होंने भी कहा जी उनको ना सुने, आप गुमराह हो जाएंगे इस तरह, वो तो हदीस के बगैर बात करते हैं, यानी ऐसे रेफरेंस सही नहीं देते हैं। तो मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह सर्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रिसर्च है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। तो मैंने ख्वाहिश की कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा इंशाल्लाह एक दफ़ा ना, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर। तो अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। गुमराह हो गए हो, वो सही कह रहे थे, आप गुमराह हो चुके हो। अगर आपको रेफरेंसेस मिल रहे हैं ना और उनको नहीं मिल रहे हैं तो आप गुमराह हो गए हो। नहीं सर, उनको भी पता है, लेकिन दरअसल ये चीज़ है कि वो अवामुन नास के सामने बयान नहीं कर रहे हैं। अंदर गए थे, मुलाकात करके आए हो? इंशाल्लाह जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हाँ जी और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? अबू बकर। अबू बकर माशाल्लाह। किधर से? सियालकोट, मिसबाह साहब की सिटी से। मुर्शिद के शहर से। मुर्शिद के शहर से। कैसे आना हुआ? बस इसी तरह उस्ताद मोहतरम को मैं 2021 से सुनता आ रहा हूँ, जब ये मुफ्ती तारिक मसूद वाला जो एपिसोड हुआ था ना, मुफ्ती साहब वाला। हाँ, तो तब मैंने तो दिफा मुफ्ती साहब का किया, लेकिन 1-2-3 माह बाद जो है ना पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया इंजीनियर साहब का। फिर वहाँ से स्टार्टिंग हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हैं। बड़ा दिफा आप मुफ्ती साहब का कर रहे थे? बस क्या ये बात था कि मैं हनफी था, बरेलवी था। उसके बाद जो हमारी मुकामी मस्जिद इलाके की, वो हमारा सारा घर का मौलवी सिस्टम है, ठीक है। इमामत वहाँ मेरे तायाबू करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस मस्जिद में मैं अज़ानें देता रहा हूँ, इकामतें कहता रहा हूँ इमाम के पीछे मुझे नमाज़ पढ़ने का बड़ा शौक था कि मैं इकामत कहूँ और मैं नमाज़ पढ़ूँ। बस उसके बाद जब चेंजिंग आई तो मैंने रफ़ल ज़ीन से नमाज़ शुरू की, तो काफ़ी फिर बहस से आप दे रहे हो जी, आप इकामत कर रहे? नहीं अब नहीं, अब तो वो कहते हैं कि मस्जिद में भी ना आए। तो बाकी ये है, फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर उनके साथ मैं बैठा 1-to-1, इस पर डिस्कशन हुई हमारी, मैंने उनको सारे रेफरेंसेस दिए, तो उसके बाद गुनीत तालबीन वगैरह दिखाई, तो उन्होंने वही पुराने शुरुले वो हमली थे ये वो, तो फिर मैंने उसका आगे भी रद्द किया कि वो तो अहले हदीस को बेहतर कह रहे हैं, तो अहले हदीस किसी भी इमाम को फॉलो नहीं करते। ऐसा ही है जी। फर्स्ट टाइम आयो? जी हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा रहा एक्सपीरियंस अकेडमी में आके, क्या देखा? बस यही है कि जब उनका मैं फर्स्ट लुकिंग देखी है ना, तो मेरे तो रंग लाल हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना मैं। और नारा जब लाइव सुना है वो तो फिर देखे जज्बा आया अंदर। चल बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी और कौन? सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? आतिफ हुसैन। आतिफ भाई किधर से? सियालकोट से। सियालकोट से इकट्ठे हो? जी, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं जी। और कौन है? ये भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया? अली रज़ा। अली रज़ा। आप भी क्यों सियालकोट से? जी, तीनों इकट्ठे? जी। पहले तीनों इंजीनियर साहब को सुनने से पहले बरेलवी थे, क्या थे? बरेलवी सब
जी। कहानियाँ मिस भाई साहब की सुनते होंगे बहुत ज़्यादा। जुम्मा अभी भी उनके पीछे पड़ता हूँ मैं। अच्छा, अभी भी उनके पीछे पड़ता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके एरिया का हूँ मैं। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं इंजीनियर साहब के बारे में? हर दफ़ा कोई ना कोई क्लिप आ जाता है। हाँ जी ज़ाहिर है, वो हर जुम्मे ना कोई अली भाई की कोई ना कोई बात कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी व्यूवरशिप भी आ जाती है, तो लोग उनको थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं जो कबर चट्टू हैं। अच्छा, इनके बारे में एक दोस्त बता रहे थे कि ये साइकिल पे आए थे, फिर ये बाइक पे थे, तो अब तो ये गाड़ियों में फिरते हैं, ये बात बिल्कुल है? मुझे ये तो नहीं पता कि वो साइकिल पे आए थे, लेकिन मैंने उनको वाइट कलर की उनकी कार वाकई मैंने देखी है, जो बड़ी गाड़ी होती है ना, होंडा सिटी या करोला, इस तरह की कोई कार थी, उस पर मैंने उनको लाजमी देखा, क्योंकि मेरे पास से करीब से गुजर के जाते हैं वो गाड़ियाँ, तो मैंने उनके पास देखी हैं। अल्लाह का करम है। हाँ जी, अल्लाह पाक का आज ही के पहलू के लिए वैसे भी किराए पे है, आज ही के पहलू के लिए घरों का आज भी किराए पे ही है। अच्छा, घरों का आज भी किराए, लेकिन गाड़ियाँ हैं बस ये हमें नहीं पॉइंट छोड़ा हुआ है ना कि चले लोगों के सामने ये मेरा सारी दौलत और जायदाद सामने ना जाए। बाकी ये है, उन्होंने किसी से फीस करके मांगी नहीं, लेकिन लोगों ने बहुत दिया उनको ऐसे चंदा करके। सियालकोट के बंदे सुनाते हैं उनकी। माशाल्लाह, आपको पता है सियालकोट तो अमीरों का शहर है। बेशक जी, वो बहुत उधर काम इंडस्ट्रियल स्टेट वगैरह ये वो सारा कुछ उधर है, तो अभी भी वो कुछ ना कुछ कहते हैं जी आप जाके दाता साहब से मांगो। हाँ, दाता साहब से मांगो, गोश्त पाक से मांगो, चंदे लेने होते हैं तो आगे हैं, इतने बड़े बट्टे आगे कर देते हैं जी, इसमें जी चंदा फेंक के जाएं, और जो कुछ उन्होंने कहना होता है जी कर्जा वगैरह पाकिस्तान ने लेना, वो जाके दाता साहब से मांग ले। तो आप दाता साहब से चंदा क्यों नहीं मांगते? दाता साहब से चंदा क्यों नहीं मांगते? तो पता है उधर से नहीं मिलना। तो हमें जब रफ़ा दैन करते हैं अपनी मस्जिद में, तो पहले तो मुझे कारी साहब ने कहा जी अपनी नमाज़ दुरुस्त कर लें। मैंने कहा जी मुझे नमाज़ नहीं आती, मुझे आप तरीका बता दें नमाज़ का, तो मैं वैसी नमाज़ पढ़ लेता हूँ। कहते हैं जी आप रफ़ा दैन बंद कर दो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये किताब में लिखा हुआ है, मन है। मैंने कहा ठीक है, आप रेफरेंस दें मुझे, मैं मान लेता हूँ। उन्होंने पता नहीं कोई एक छोटा सा पेज था, उसकी तस्वीर बनाई है, उसको काट के वो 1-2 लाइन वो मुझे सेंड की है। तो मैं अली भाई को ऑलरेडी कोई 6 माह पहले से सुन रहा था, तब ये पुरानी बात है। तो जब मैंने उनको ये रेफरेंस सेंड किए ना, तो वो कहते हैं जी मैंने तो आपको पहले कहा था कि आपने माना। मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन आप नहीं मान रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन उसको मैंने 20-25 ना रेफरेंस किताबों के सेंड किए, नाम लिख के, हदीस नंबर वगैरह, तो तब से उसने मुझे नहीं छेड़ा। तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, उसने नहीं मुझे कहा कि अपनी नमाज़ दुरुस्त कर लो। और जब मैं नमाज़ पढ़ना तो पीछे मेरे रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार, वो कानों को हाथ लगा रहे होते हैं, ये गुमराह हो गया। मैं कहा ठीक है, मैं गुमराही ठीक हूँ, आप रहने दो। वो कहते हैं जी हमारे बाप दादा ऐसे नमाज़ पढ़ते थे, ये था उनका अकीदा, ये था, वो सारे गलत थे। मैंने कहा फिर तो ऐसे तो कोई बंदा हक राय पे ही ना आए कि हमारे पीछे वाले गलत हैं, हम सही कैसे हो जाएं फिर? सही बात है, सही है। अच्छा, आज आए अकेडमी में, पहली दफ़ा आए? नहीं, मेरा दूसरा चक्कर है, मैं इन भाइयों को लेके आया हूँ। आप पहली दफ़ा आए? पहली दफ़ा। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है। लाइव देख लिया, इंजीनियर साहब को सुन लिया? अच्छा, ये लोग कहते हैं मुखालफिन बंदे इनके अपने होते हैं, सवाल भी अपने होते हैं, कमरे वाली सरकार बाहर नहीं निकलता, ये है इस तरह की कोई चीज़ देखी है? नहीं, कोई भी नहीं। कोई चीज़ नहीं। चले, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आए जी, और कौन? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सरदार बुरहान है। सरदार बुरहान, माशाल्लाह। सरदार भाई किधर से? मैं सर रहीम यार खान से हूँ। रहीम यार खान से। ये कितना सफ़र है यहाँ पर? ये तकरीबन है कोई ना 600-650 किलोमीटर है। 600-650। हाँ अकेले आए जी। खैरियत थी, कोई काम था? मैं तकरीबन ना कोई 17-18 से ना कोई इंसिडेंटली ना यूट्यूब पर इसको सुन रहा था, अचानक मिर्ज़ा साहब की वीडियो आई है, तो मैंने 17-18 मैंने इनको सुनना शुरू किया है। अच्छा, इनका तारुफ बाई चांस हो गया? हाँ जी भाई जान। नेगेटिव पॉजिटिव अभी कुछ नहीं था? अभी कुछ नहीं था। जब सुनना शुरू किया तो क्या चीज़ इम्प्रेस कर गई? ये इनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये ना लोगों को तहकीक, तफ्तीश, तौसीक, तस्दीक, जांच पड़ताल, जायज़ा, इख्तलाफ राय और क्रिटिसिज्म का हुनर सिखा रहे हैं। ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है। नहीं तो उलमा तो कहते इसको सुनना ही नहीं है। नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो अच्छा, क्यों कहते हैं? आपको क्या लगता है? हर बंदा ही कहता है, हर आलिम दीन कहता है, चाहे वो हदीस का, चाहे वो बरेलवी का, देवबंद का, वो कहता है ये नहीं सुनना। आप कहते हैं इसका प्लस पॉइंट है? खुद ना शुरू से ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, दूसरों को भी कहते हैं कि वो तकलीदियत को ही अपनाना है, किसी की तहकीक तफ्तीश की तरफ नहीं जाना। ये अगर उस तरफ चले गए तो हमको शऊर आ जाएगा, शऊर आ जाएगा, वरना साढ़ा स्लिप हो जाएगा। एक हाँ जी, यही बात है। अच्छा, आज आए फर्स्ट टाइम, अकेडमी का माहौल भी देख लिया, इंजीनियर साहब को लाइव देख भी लिया, वीडियोस में तो देखते होंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? लेकिन एक मेरे ये है कि इंजीनियर साहब के और उनके जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, उनके ना टेम्परामेंट में थोड़ी रिजिडिटी और ना स्ट्रिक्टनेस है। मैं समझता हूँ इसको फ्लेक्सिबल, उसको इस्लाह करने की सही है, बिल्कुल सही है, सही हो गया। चले, ये तो देखें, ये तो जर्नलिस्ट मैनेजरियल इशू होते हैं, होता है, हर बंदे की अपनी जो है एक टेम्पो है बात करने का या जो भी है। असल में इसकी वजह, इसके बिहाइंड पीछे और बहुत कुछ है, आपको नहीं पता। बाज़ बंदे भी इस तरह बिहेव कर देते हैं। हाँ, तो सीधी सी बात है, कर देते हैं। तो चले,
ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। एक दिल में ख्वाहिश थी इनको लाइव सुनने की, आज ख्वाहिश पूरी हो गया। इंशाल्लाह मज़ीद मच बेटर हमारे अंदर भी जो है ना प्रैक्टिकली जो है वीडियोस में जब हम देखते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कटिंग हो रही है, वो किस तरह बात हो रही है, प्लांटेड प्रोग्राम है। लाइव तो देख लिया ना, ये एक्सपीरियंस कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आए जी और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम नूरुल हसन है। नूरुल हसन भाई मलेशिया से आया हूँ स्पेशल। मलेशिया से? जी जी। और पाकिस्तान से? पाकिस्तान में लाहौर से। लाहौर से? लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर भगतपुरा शादबाग। शादबाग। खैरियत थी जी? क्या इतनी दूर से आ गए हैं आप? कह रहे हैं स्पेशल आ गए मलेशिया? 2016 में पाकिस्तान में था, 17 में मैं मलेशिया चला गया। तो थोड़ा सा मैंने तारुफ किया हुआ था फेसबुक पे। ठीक है। मौला अली करते थे, तो मैंने देखा यार ये क्या मौला अली कर रहा है, ये हदीसें भी बयान कर रहा है, कुरान भी बयान कर रहा है और मौला अली कर रहा है। तो मैंने नहीं इतना गौर किया। जब मैं मलेशिया में चला गया, वर्क करता था, तो इनकी वीडियो आती थी फेसबुक में, तो फिर अच्छा लगा। तो मैंने जंग नहरवान, सफ़ीन वगैरह मुताला पहले भी किया हुआ था किताबों में। तो फिर पता चला भाई मौला अली से मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जो बता रहे हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मेरा दिल तौहीद, फिर ऐसी तौहीद बयान की है जैसे सूरत पूरे कुरान का खुलासा ही बयान कर रहे हैं, ये कुरान बयान कर रहे हैं। तो सूरत फातिहा का भी देखा मैंने, तो उसका तर्जमा पढ़ा। मैंने कहा यार ये तो इंजीनियर साहब बिल्कुल वैसे ही तलफ़्फ़ुज़ और तलफ़्फ़ुज़ से साथ तर्जमा कुरान का बयान कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल कुरान की तरह बयान कर रहे हैं, ये तो सुनने वाली बात है। इसमें ना कोई बाबों की बात हो रही है, ना कोई बाबे शाबे मौलवी शोलवी डबल शाह ट्रिपल शाह कोई ऐसा वैसा नहीं है। ये तो सीधा सीधा कुरान और हदीस की बयान कर रहे हैं, जो तरीका बयान कर रहे हैं उस बिल्कुल कुरान के साथ अटैच हो रहा है। तो इसलिए मोहब्बत है, ये बात करना चाहता था मैं। अच्छा, आपका पहले मतलब फ़िक्र कौन सा था जो आप कहते हैं मौला अली कहते थे? तो तब आप क्या थे? तब मैं बरेलवी और शिया था, मैं मिक्स था। तो शिया थे तो आपको मौला अली का तो मसला नहीं होना चाहिए था? नहीं, असल पता ये लगा जंगे नहरवान क्या है। और आपने ये भी कहा कि इससे पहले भी मैंने स्टडी की। जी मैंने वो तो क्या स्टडी की हुई थी, आपको पता नहीं लगा? हाँ मुझे पता ही नहीं चला। वो असल बात तो मतलब असल बात छुपा दी। जी जी। वो जब जंगे नहरवान पढ़ी मैंने, वो पहले पढ़ी हुई थी, मगर उसका सही जो मेन हेडलाइन होती है ना, पता मेन मकसद जो होता है सहाबा किराम के अंदर क्या था, क्या वजूहात हुई, किस बेस पे ये जंग हुई, क्या बेस थी, वो पता चल गई असल में। फर्स्ट टाइम है आज? आज फर्स्ट टाइम हुए। आज लाइव भी देख लिया, सुन भी लिया, की तमन्ना पूरी हो गई। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। बेशक। तो सीधे रास्ते पे हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आए जी और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? जुनैद भाई। किधर से? पिंडी से। पिंडी से। कैसा आना हुआ ये बताएं। मैं असल में मीम्स बहुत देखता हूँ, तो एक दिन इनकी मीम देखी थी कोई एक, वो वैसे तो बहुत मीम्स देखते हैं हम इनकी मौलवियों की जितनी होती हैं, तो वो एक देखी थी, तो बस उससे फिर ऐसी मैंने वीडियो निकाली, तो फिर देखना शुरू की। फिर मैंने एक दिन में बहुत सारी वीडियोस देख ली, तो फिर मैंने कहा सुनना चाहिए जाके, तो इसलिए फिर मैं। इससे पहले कौन सा मकतबा फ़िक्र फॉलो कर रहे थे? मैं बेसिकली जब मदरसे भी जाता था ना, तो घर वाले ना ले छोड़ने जाते थे और ले आते थे, तो मैं बेसिकली इतना रहा नहीं उनसे मौलवियों से इंस्पायर। नहीं, मकतबा फ़िक्र कोई ना कोई तो बंदा फॉलो करता है ना। स्कूल ऑफ थॉट बरेलवी था, देवबंद था, अहले हदीस था, क्या था? बरेलवी, लेकिन मैंने पढ़ा देवबंद के मदरसे में, मतलब मैंने दोनों देखे हुए हैं, और मेरा बचपन अहले तशरीह में गुजरा है, वो उनके एरिया में रहते थे, तो थोड़े थोड़े मुझे सबके पता ही थे, लेकिन इस तरह क्लियरिटी से नहीं थे। और दूसरा बाकी ये मज़ारों की और ये जो करते थे, तो मुझे शुरू से ही लगता था कि ये कहानियाँ ही हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। घर में फैमिली का माहौल स्ट्रिक्ट था? नहीं, नॉर्मल था। दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, कोई नहीं ज़्यादा। मेरे बस नमाज का कहते थे, अब्बू नमाज़ पढ़ते थे मेरे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फोत हो गए हैं, वो भी खुद भी नमाज, अम्मी भी पढ़ती हैं, सब वो यही बस नमाज पे जोर देते थे कि नमाज़ पढ़ो। और जब आपने ये सबको सुना तो इनकी कौन सी बातें इम्प्रेस कर गई, क्या था? मतलब हदीस का बेसिकली कुरान का तर्जुमा भी थोड़ा बहुत पढ़ा, इतना नहीं पढ़ा, वो बहुत अच्छा लगा। फिर हदीसें जो इन्होंने बयान की, जैसे वो मौलवी कहते हैं जी खुद से नहीं पढ़ना, किसी के थ्रू पढ़ना है। भाई किसी के थ्रू क्यों पढ़ना है, जब अल्लाह कह रहा है कि मैं शरक से भी करीब हूँ, तो उसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता ना फिर। तो फिर यह है कि हदीसों का जिस तरह इन्होंने बताया, जैसे मौलवी छुपाते हैं हदीसें, मतलब की हदीसें बताते हैं, या मतलब की चीज़ें बताते हैं, या अपनी तरफ से गढ़ के बताते हैं, जैसे वो वाक़े सुनाते हैं, तो मैंने भी सुने हुए थे वो से पाक के, और ये मनाजरे वाला, उस पर तो मुझे डाउट रहता था शुरू से कि वो नहीं हुआ कभी भी, जो ये
وہ میں نہیں مانتا تھا. میرے دوست سے بڑی بحث ہوتی تھی, وہ کہتا تھا نہیں ہوا. میں کہتا تھا کہ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ کسی کے کہنے سے قلم لکھنا شروع کر دے, جب کسی نبی نے نہیں کیا اس طرح, تو ایک ولی, پتہ نہیں ولی بھی ہے کہ نہیں, وہ اٹھ کے کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میں قلم کو کہوں گا وہ لکھے گا. ٹھیک ہے, معاشرہ اور خصوصاً بر صغیر کا معاشرہ, ہاں یہ بات ٹھیک ہے نا, پاکستان جو ہے اور خصوصاً شاید ہم لوگ انڈیا سے بھی الگ ہیں ان معاملات میں, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں کسی پیج پہ جا کے سکڑ جاتے ہیں. ہاں ہاں, ہم لوگ تو بکھرتے چلے گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل میں دیکھیں پتہ ہے کیا سین یہ ہے کہ علی بھائی نے جس طریقے سے بات شروع کی, جہاں سے ان کو آغاز ہوا, ویڈیوز آنا شروع ان کی, وہ اس معاشرے کی سمجھنے اشد ضرورت تھی. بے شک ایسے, کیونکہ اس سے پہلے اہل حدیث لوگوں کی بات شروع کی انہوں نے, لیکن وہ بھی کہیں جا کے وہ ایک کی پیروی میں لے گئے, یعنی کہ فالوئنگ پہ چلے گئے. جو یہ کہتے تھے کہ ہم مقلد اور غیر مقلد بات کر رہے ہیں, وہ غیر مقلد وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے فالوئنگ میں شروع ہو گئے. انہوں نے آ کے جو بات شروع کی وہ بالکل ایک ڈفرینٹ انداز میں, اور انہوں نے جس انداز میں لتاڑا ہے ان ہستیوں کو جن کے بارے میں عموماً معاشرے میں بات نہیں کی جاتی. جی ایسا ہی ہے نا. مطلب جو سب سے بڑا کریڈٹ جو جاتا ہے علی بھائی کو, وہ یہ ہے کہ انہوں نے جس ایکشن میں بات کی وہ عموماً عام آدمی کو ہضم نہیں ہو سکتی. لیکن ایسے بہت سارے لوگ, جیسے اصحاب کہف کی مثال ایک الگ قرآن میں دی گئی ہے, ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں سسٹم سے, لیکن وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک سسٹم رکھتے ہیں. جی بالکل ہے. وہ زبان جو آ گئی ہے نا, وہ جو سمجھ لو کیمرے کے سامنے وہ علی بھائی کی آ گئی. ایسے کئی لوگ ہیں, جیسے آج آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں. اور میں نے ایک چیز اور نوٹ کی جو یہاں پر, کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ دین دار ہی نہیں سمجھتے. دیوبندی بریلوی تو بہت دور کی بات ہے, مطلب ان کو کچھ بھی لوگ نہیں سمجھتے, لیکن ایسے کئی لوگ موجود تھے جنہوں نے کانوں میں کوکے لگائے ہوئے تھے, عجیب ہو گیا تھا ان کا, ٹھیک ہے نا. اس ٹائپ کی جنٹری کو جب میں نے دیکھا تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ یہ بھی ایک کمپلیکس میں مبتلا تھے, اور ان کو بھی ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے, مل گیا سمجھنے کے لیے. تو یہ کریڈٹ ادھر کافی سارے آپ کو اس طرح کے بھی نظر آئے, ایسے ہی ہے, لیکن توحید سمجھ گئے ہیں وہ, الحمدللہ. جی ہاں, اللہ کی توحید سمجھ. اصل میں بات یہی آتی ہے کہ کچھ تو انہوں نے جو اسٹائل اپنایا وہ وقت کی ضرورت تھی, اس میں کوئی شک نہیں, اور ان کا اپنا مزاج ہوگا. ڈیفینیٹلی کوئی شخص کسی کو کاپی نہیں کر سکتا, نہ ہر شخص پڑھی ہوئی چیزوں کو جو ہے نا اپنے انداز میں بیان کر سکتا ہے. وہ یقیناً ان کی اپنی تھاٹ ہوگی, تھاٹ لے کے جب آئیں, اور آپ بھی یقیناً جب ان کے ساتھ جڑے ہیں تو پہلے سے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ساری چیزیں آئیں, تو یہ ان کا ایک کریڈٹ ہے. اچھا ایک سیکنڈ چیز میں علی بھائی کے لیے ایک پیغام دوں گا جو اصل میں شاید وہ کہیں مسنگ نہ ہو جائے. ابھی ان کو پکچر میں بھی میں نے ان سے ایک بات کی تھی کہ علی بھائی یہ سلطان راہی والا اسٹائل چھوڑ میں آ جائیں. تو ان کو میں نے یہ کہا تھا, تو انہوں نے کہا میں صحیح راستے پہ ہوں, تو میں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط سمجھ جائیں. ایسا نہیں, میں نے اسموتھ انداز میں کہا تھا, کیونکہ اب لوگ جو ہیں آپ کو, اب آپ کی داڑھی میں سفید بال بھی آ گئے ماشاء اللہ, ایک انداز. اور کچھ پچھلے دنوں جو طارق مسعود والا واقعہ ہوا تھا, اس وقت ان میں کافی سنجیدگی نظر آ رہی تھی, لیکن وہ ہر, میں نے آپ کو پہلے کہا نا, وہ جس طرح کا ٹاپک ہونا بیچ میں آپ کو بتاؤں, جی ہر بندے کو نا ہر طرح کی بات کلک کرتی ہے. ایسے ہی ایک لفظ تھا, میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ سمجھا دیتا ہوں, کہ بھی سنی نے سنا کے سنی نہیں ٹنی نے. اب یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہنے میں. میرا اپنا پرسنلی ایک دوست, اور اتنا کٹر پرست بابا پرست, اتنا کٹر بابا پرست, جو کہتا ہے میں پورے دن میں ایک دفعہ دربار پہ حاضری نہ لگاؤں. وہ یہاں سے چلا گیا کینیڈا چلا گیا, پتہ نہیں کدھر چلا گیا, ٹھیک ہے, ناروے کا کینیڈا پہلے, کیونکہ اس پر شینگن ویزا, تو چلا گیا. وہ مجھے ادھر سے جا کے فون کرتا ہے, حالانکہ جب وہ ادھر تھا تو یہاں پہ وہ انجینئر صاحب کو جانتا تھا, کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا. ادھر جا کے وہ کہتا ہے جی وہ میں نے کلپ دیکھا ٹونی والا, تو وہ بدل گیا ہے. سر یہ بات کسی کو بھی کلک کر سکتی ہے, ایسے ہی نہیں, کوئی بات کسی کی کلک کر سکتی ہے. ایسے ہی حضرت, میں نے یہی کہا نا, میں تو اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جو انہوں نے آغاز کیا, جو انہوں نے اپنا مطلب ایک اسٹریم لائن سلیکٹ کی, جس طریقے سے ایک ٹریک انہوں نے وہ سلیکٹ کر کے اس کے اوپر چلنا شروع ہوا نا, سپر تھا. یہی زبان چاہیے تھی. بلکہ ان کے اپنے کلپ میں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اچھی زبان استعمال کریں, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ ایک داڑھ میں جو ہے وہ شہد رکھ لیں اور ایک میں گڑ رکھ لیں, اور جا کے بولیں میٹھے میٹھے بھائیوں, تو کوئی نہیں سنے گا. ایسے ہی تو یہ بالکل ٹھیک ہے, مگر اب ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیمیج جو ہے آپ کا وہ ہو چکا ہے, کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کی ایک فالوئنگ بھی ہو گئی ہے, لوگ آپ کو الحمدللہ, تو اب قرآن و سنت کو لوگ سمجھ گئے. اب لوگ برملا یہاں سے جب اسٹوڈنٹ جاتے ہیں, یا یہاں کے جو پکے مطلب ذہن والے لوگ ہیں, وہ بھی اگر کہیں بات کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر کی ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے, ہم قرآن حدیث کی بات بالکل صحیح, زبردست. تو یہ لیسن ایک امپورٹنٹ ہے. جب یہ لیسن امپورٹنٹ ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو سمجھیں گے نا اگر, تو فالوئنگ ہماری پھر اس طرف آ جائے گی. ٹھیک ہوگا سر, آپ کا میسج آ گیا. جزاک اللہ بھیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام وحید ہے. وحید کدھر سے؟ میں کراچی سے آیا ہوں. آپ بھی کراچی سے؟ کس کے ساتھ ہو؟ میں اکیلا آیا ہوں. یار وہ بھی کراچی سے ہیں, اور اس سے پہلے 2 ٹنڈو آدم سے تھے. اچھا, اب الگ الگ سارے. بس دیکھ لیں, میں کافی ٹائم سے, ایون میں اپنے ٹین ایج سے انجینئر صاحب کو سن رہا ہوں. اچھا,
तो माशाल्लाह मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट आई। मैंने अपने मतलब जो दोस्त के ग्रुप थे उनने भी सबको मतलब कि इन्फ्लुएंस किया कि इन्हें सुनो। पहले तो वो मतलब कि इस चीज़ पे बहुत लड़ते थे, इवन हम लोग चाय के होटल पे बैठ के एक दूसरे से बहस कर रहे थे, जैसे दुश्मन नहीं होते एक दूसरे के कि नहीं ये गलत है, वो सही है, ये सही है तो वो गलत है। हम इस तरह की कन्वर्सेशन हमारी चल रही होती थी। फिर मैंने उनको इंसिस्ट किया कि भाई आप इनको सुनो, अगर आपको ना समझ आए भाई मैं बैठा हूँ, मुझे आगे बोल देना। तो मेरे दोस्तों ने भी मतलब सुनना स्टार्ट किया। फिर करते 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 उनके जो एक्स मतलब वो थे जिनको वो सुनते थे उनके खिलाफ वो अपोजिट हो गए, इनको ये सही कहने लग गए। अब इवन के मेरे सारे दोस्त जो थे वो आना चाह रहे थे, लेकिन मैं एक जल्दी निकल आया क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब वो था मिलना। और मेरी फ़र्स्ट टाइम आज मीटिंग हुई है इनसे। घर वालों को बता के आए हो? हाँ, घर वालों को बता के अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है मैं आया हूँ। उन घर वालों को भी मैंने वीडियो कॉल पे भी लिया, सबको दिखाया कि हाँ मैं जिस मकसद के लिए आया था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो अब इंशाल्लाह यहाँ से मिल के अब वापस कराची। माशाल्लाह कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। इनका जो ये बिहेवियर है ना, मतलब वे ऑफ टॉकिंग है और जो एटीट्यूड है ये बरकरार है, तो हमारे दिमाग में कुछ घुस रहा है। अच्छा ये सीधी वो मैं पिछले बंदे से अभी मैं मुतमईन नहीं हूँ। ये बिहेवियर होगा तो दिमाग में वो बोलते ना ड्रिल अगर होगा ना दिमाग में तो ज़ाहिर है दर्द तो होगा। वो वाला हिसाब ड्रिलिंग होनी चाहिए। ड्रिलिंग होनी चाहिए। ये एटीट्यूड बरकरार रहना चाहिए। और ये सुल्तान राय वगैरह वाला एटीट्यूड होगा तो लोगों को कुछ समझ आएगा। इसके नीचे उनको समझ भी नहीं आता ना। बाकी प्यार वाली ज़ुबान हमने बहुत सुन ली, बहुत कहानियाँ सुन ली, अब नींद से उड़ गए हैं। अब हमने वो कहानियाँ दोबारा ना सुननी है ना उन पे अमल करना है। बस अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पे अंदर मुलाकात हुई। हाँ, मेरी पिक्चर भी हुई उनके साथ। चले, बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।